let me just go in detail and try to understand what are the content which we cover up in unit number 1. So friends, the unit number 1 is about the introductory part. So in that we just first of all start up with the first meaning of strategy, the various characteristics of the nature of the strategical decisions which we have. Then we focus on the strategy management. In that, the meaning of strategy management we just see, an important one, the strategy management components. In that, we just see we have a 3 main components: strategical positioning, choice, and strategy in action. So these are the 3 important aspects based on which the whole syllabus of strategy management is depend on that. Then we just go ahead with the environmental analysis. In that, we just see the various models which we have, with the help of which we want to analyze the various factors so that we can able to identify the opportunities and threats for the organizations. And at last, we just see about the strategical capabilities in terms of resources and in terms of core competencies. So let me just go in detail and try to elaborate what we do in unit number 1. So friends, first of all, we just see that we have the certain examples which we just discussed कि भाई हर एक कॉर्पोरेट हाउस जो है वो different ways of strategies follow करता है. Someone might believe in going for diversifications in a related area. Someone might believe to go for the diversifications in a totally unrelated areas. Some of the companies might go for mergers, acquisitions for the purpose of taking the strategical advantage. Some companies moving towards the product development where they just identify the new products. Some companies go for identifying the new market, that is market development, where they identify the new market, untapped need, and they just try to do the sales over there. So different companies have a different kinds of strategies for them. उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था the strategy is quite different from the policy. कि भाई हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटेजी, तो there is a difference between the strategy and policies. कि भाई कंपनी के अंदर लिस्ट ऑफ पॉलिसीज होती है, तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस which is established by the organizations. It will help them in taking a certain kind of decisions. As compared to that, strategy क्या है? तो strategy is a one kind of plan. It is a one kind of directions. Strategy जो है वो क्या है? एक प्लान है कि जो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई कंपनी के रूप में आप ये पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहते हो, कि भाई आप एक नए प्रोडक्ट के लिए जाना चाहते हो, एक नई मार्केट में आप एक्सपांड करना चाहते हो, एक क्या है पर्टिकुलर कंपनी को आप एक्वायर करना चाहते हो, उसके साथ मर्जर एंड एक्विजिशंस करना चाहते हो. तो strategy is a one kind of directions which will help the organizations in giving the directions to its resources, not only in terms of human but also in terms of their finance, technology, कि भाई वो सारी चीज़ों को, वो रिसोर्सेज जो है वो सारी चीज़ों को क्या है एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में अलॉट करेगा, so that at the end they can able to attain the objectives. उनका जो गोल है, विजन है, मिशन है, उसको अटेन करना है. At the same time, we also need to bother about the environment, कि भाई वो environmental factors को भी हमें ध्यान में रखना है, तो strategy के अंदर वो चीज़ भी हम ध्यान में लेते हैं. तो in simplest way हम क्या है डिफाइन कर सकते हैं कि strategy क्या है? तो strategy provide the set of directions, कि भाई strategy एक प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, एक directions है कि जो कंपनी को हेल्प करता है in attaining his vision and mission. Then we just see that there are the 3 levels of strategies. कुछ strategies ऐसी होती है which is made at the corporate level, some are made at the business level, or we also see some of the strategies which are going to be take place even at functional level, like HR, like finance, like IT. तो even क्या है टॉप से लेके बॉटम लेवल तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज बिल्डअप होती है और वो एग्जीक्यूट होती है, और हमें क्या है उसको इंटीग्रेट करना है, लिंक करना है कि भाई इवन रिसोर्स लोअर लेवल स्ट्रेटेजीज जो है आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज है, वो इवन आपकी बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज को हेल्प कर सकती है. तो ये सारे स्ट्रेटेजीज क्या है एक दूसरे से लिंक होगी, उसका एग्जांपल देखा था. Then these are the certain vocabularies which we are normally using in our strategy management subject. तो विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज क्या होती है,
स्ट्रेटेजीज क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेरियस टर्मिनोलॉजीज है कि जो हमने उसके मीनिंग के साथ देखा था। उसके बाद डेफिनेशन पार्ट कि जहाँ पे हमने समझा था कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्ट्रेटेजी को हमने डिफाइन किया था एज पर द एल्फर्ड। स्ट्रेटेजी इज the determinations of the long run goals and objectives of the enterprise। कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई हम लॉन्ग रन में कंपनी के रूप में कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। एंड एडॉप्ट द कोर्स ऑफ एक्शन कि उस हिसाब से आपका कंपनी का जो विजन मिशन होगा, गोल जो होगा, उस हिसाब से क्या है आप अपनी डिसीजन लोगे, एक्टिविटीज डिटरमाइन करोगे। एंड अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज टू नेसेसरीली टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर गोल। और वो गोल को, वो एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो सारे रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे। सो इन दिस वे स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर देयर आर द 3 थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कैरी आउट। फर्स्ट वी आर आइडेंटिफाइंग कि भाई हमें कंपनी के रूप में कहाँ पे जाना है। सेकंड हम कैसे जा सकते हैं। और थर्ड एग्जीक्यूशन पार्ट। सो इन दिस वे द स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर हमने यही देखा था कि भाई स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद द फ्रेमिंग द स्ट्रेटेजीज बट ऑल्सो इट्स इम्प्लीकेशन पार्ट। तो स्ट्रेटेजीज को डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है कि भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज के रूप में आप क्या करना चाहते हो कि भाई आप अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो। सिंपलेस्ट वे में हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, तो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस है कि जो कंपनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जाना चाहती है। सो इन दिस वे दिस आर द लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज डेफिनेशंस व्हिच वी जस्ट सी। वी ऑल्सो सी दैट कि स्ट्रेटेजी जो है इट इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज स्ट्रेटेगोस। और स्ट्रेटेजी जो है वो नॉर्मली कहाँ पे यूज होता था, इट इज इन दी आर्मी, द आर्ट ऑफ द जनरल। तो जो स्पेसिफिक आर्मी के अंदर जो जनरल होते हैं उनकी जो वे ऑफ डूइंग द थिंग्स कि भाई उनके डिसीजन मेकिंग स्टाइल थे, उसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वर्ड आया था। बेस्ड ऑन द डेफिनेशंस वी जस्ट सी द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई डेफिनेशंस के बेसिस पे हम स्ट्रेटेजीज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई स्ट्रेटेजी इज अ कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस कि भाई स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस से रिलेटेड है या लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस के लिए आप डिसीजंस लेते हो। नॉर्मली अबाउट द ट्राइंग टू अचीव समथिंग एडवांटेज ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं। likely to be concerns with the scope of the organization's activities कि भी कंपनी के रूप में आपका एरिया ऑफ वर्क क्या होगा, गोल क्या होगा, विजन क्या होगा, उस हिसाब से आप कैसे पहुंचोगे। मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एन एनवायरनमेंट कि भाई स्ट्रेटेजिकल फिट कि भाई एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, उसके मुताबिक आप अपने आप को चेंज करोगे, रिसोर्सेज अलोकेट करोगे सो दैट यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। Then you want to build or stretch of an organization's resources and competencies to create the opportunities or to capitalize on them। तो strategical stretch कि भाई इवन आप क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मेरे जो रिसोर्सेज है उसको मैं किस तरीके से यूज करूंगा so that I can take the or get the advantage। The strategical decisions are likely to be affect your operational decisions कि भाई जो डे टू डे एक्टिविटीज होगी उसके ऊपर डेफिनेटली स्ट्रेटेजीज की इम्पैक्ट आने वाली है। तो ये सारे क्या है पॉइंट्स है कि जो हमने डेफिनेशंस के ऊपर से आइडेंटिफाई किए हैं। सेम वे देयर आर द सर्टेन डिफिकल्टीज इन स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस लाइक जो हमारी स्ट्रेटेजीज है वो हमेशा क्या है कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, समझना बिल्डअप करना आसान काम नहीं है। देयर इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज कि भी हम हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं बट तो फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन। तो हमने जिस हिसाब से सोचा था उसी हिसाब से सारी चीज़ें होगी। वी आर नॉट गिविंग 100% एश्योरिटी फॉर दैट एंड स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस आर डिमांडिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कि भाई क्या है सारे रिसोर्सेज जो है, डिविजन्स है, डिपार्टमेंट है, एसपीयूज है, वो सारे लोगों को इंटीग्रेट होकर साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी क्या है हमारी कंसर्न स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएगी। एंड चेंज कि भाई चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग कि भाई डेफिनेटली सर्टेन काइंड ऑफ चेंज होने वाला है। तो उस हिसाब से हमें हमारे स्ट्रेटजीज को भी क्या है मॉडिफाइड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारे हमने क्या है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे बेस्ड ऑन द डेफिनेशन पार्ट। उसके बाद वी जस्ट मूव टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट कि वहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा था कि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट क्या है। तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ डिसीजंस। किसके कॉन्टेक्स्ट में
कि भाई स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजंस लेने वाले हो, सेट ऑफ डिसीजंस लेने वाले हो। कौन से डिसीजंस लोगे, किसके कॉन्टेक्स्ट में डिसीजंस लोगे? in the context of formulations and implementations of the strategies। कि भाई आप स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजंस लोगे, बट किसके लिए? तो वंस अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजीज, कि भाई स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना है एज वेल एज उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, स्ट्रेटेजी इन एक्शन करना है, सो दैट द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, कि भाई जिससे क्या है कंपनी के जो गोल्स है, विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको आप अटेन कर पाओ। So in strategical management, we are bothered with the three important aspects। कि भाई strategy management के अंदर हमें तीन चीजें करनी है। फर्स्ट, ये component of the strategy management के अंदर भी हमने यही समझा था और पूरा हमारा जो सिलेबस है वो भी इसके बेसिस पे ही है कि भाई strategy management के अंदर हमने क्या समझा कि भाई we are concerned with the first understanding the strategical positioning। ये क्या था? हाँ, फर्स्ट वी आर bothered with understanding the strategical positioning। कि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर हमें सबसे पहले क्या समझना है? हमारी करंट सिचुएशन समझनी है। तो वो हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर देखा कि भाई व्हाट वी विल डू द एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि भाई कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसकी इम्पैक्ट क्या आ रही है इंडस्ट्रीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो वो सारी चीज़ों को हम समझना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंसीज, वो चीज़ को हम समझना चाहते हैं। हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है कंपनी से, वो चीज़ को भी हम ध्यान में लेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट वी जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई फर्स्ट आवर पोजीशन, कि भाई स्ट्रेटेजिकली करंटली हम कहाँ पे है, हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी अभी रन एग्जीक्यूट हो रही है, एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, हमारे रिसोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंसीज कैसे है। बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग फॉर सेकंड स्टेप, दैट इज स्ट्रेटेजिकल चॉइसेस, कि भाई अभी मेरे कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस मेरे को लेने की जरूरत है। कोई नई स्ट्रेटेजीज सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। एनवायरमेंटल एनालिसिस में आपने कोई नई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब आइडेंटिफाई किया है, तो उसको ग्रैब करने के लिए मैं कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होगा, बिजनेस लेवल पे क्या होगा। तो वो सारी चीजें क्या है आप स्ट्रेटेजिकल चॉइसेस के अंदर डिटरमाइन करते हो। तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, यू जस्ट अंडरस्टैंड योर करंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशनिंग, कि भाई आपने अपनी कंपनी की करंट सिचुएशंस को समझा। सेकंड, यू जस्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिकल चॉइसेस, कि भाई आपके सामने कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल है कॉर्पोरेट लेवल पे, स्ट्रेटेजिकल लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन सी चेंज करनी चाहिए, अपडेट करनी चाहिए, मॉडिफाइड करनी चाहिए। वो सारे डिसीजंस आप क्या है स्ट्रेटेजिकल चॉइसेस लेवल पे लेते हो। The third part is the strategy in actions, that is execution part, where you are talking about कि भाई कंपनी के रूप में हमारे पास जो स्ट्रेटेजीज बिल्डअप किया है हमने कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे हमने उसको बिल्डअप किया, बट अभी उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए द रिसोर्सेज इज ऑल्सो नीड टू सपोर्ट इट, कि भाई आपको क्या है, आपके जो रिसोर्सेज है वो उसको एनेबल करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा और रिसोर्सेज को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिसोर्सेज के अंदर जो कोर कॉम्पिटेंसीज है उसको स्ट्रेटेजीज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड इवन यूनिट नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे चेंजेस, कि भाई मार्केट में डेफिनेटली सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस आते रहेंगे। सो एज अ लीडर आपको वो चेंजेस को क्या है एडॉप्ट करना है, मार्केट में सस्टेन होना है, रहना है, तो डेफिनेटली यू आल्सो नीड टू गो विद द चेंज। तो कंपनी के रूप में आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करोगे, एज अ लीडर आपका रोल क्या रहेगा, चेंज को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो वो सारी चीजें इवन यूनिट नंबर 4 के अंदर हम समझेंगे। तो दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इन एक्शन। सो इन दिस वे स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या समझा था कि जो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है वहां पे हमारा जो रोल है वो क्या है, एज अ मैनेजर्स, एज अ टॉप एग्जीक्यूटिव्स, as a CEO we are taking a certain kinds of decisions, but in the context of what, in the context of not only the formulations of the strategies but also in terms of its execution part। तो वो दोनों चीज क्या है हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर कैरी आउट करते हैं। सो इन स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट वी आर bothered with understanding the strategical positioning,
स्ट्रेटेजिकल चॉइसेस एंड स्ट्रेटेजी इन एक्शंस। तो उसको भी हमने डिटेल में समझा था कि भी करंट हमारी पोजीशंस क्या है, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कि जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स क्या होगी क्या नहीं, वो हम एनवायरमेंटल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे। चॉइसेस के अंदर हमें डिसीजंस लेना है कि भाई कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे। वहाँ पे इवन बिजनेस पोर्टफोलियो हमने समझा था कि भाई हमारा करंट सिचुएशंस क्या है, कौन सा बिजनेस कहाँ पे है, कैसा है, और कौन से रिसोर्सेज की कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सारे डिसीजंस हम स्ट्रेटेजिकल चॉइसेस में लेते हैं। देन स्ट्रेटेजी इन एक्शंस के जहाँ पे हमने समझा था कि भाई आपको क्या है, कौन से स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना है। तो क्या है, अपनी कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर रूल्स रेगुलेशंस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। आपके जो रिसोर्सेज है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शंस में लेके जाना पड़ेगा। तो आपकी जो पीपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मनी, वो जो सारे रिसोर्सेज है उसको आप अपनी कंसर्न जो स्ट्रेटेजिकल है उसके मुताबिक आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये क्या है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर डिटेल में देखा। देन वंस अगेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, फिर भी हमने समझा था कि भाई फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी का विजन मिशन होगा, गोल होगा, उसके मुताबिक हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का सॉर्ट एनालिसिस करेंगे, सो दैट वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई from the outside we can identify the opportunity and threats, from the company we can identify the strengths and weaknesses, based on that we can identify the list of strategies which we can go for। देन उसमें से हम पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज जो हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक, कंपनी के मुताबिक, हमारा गोल विजन मिशन जो है उसको अटेन करने के लिए जो हमें सुटेबल लगता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डू द सर्टेन चेंजेस, कंपनी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस करेंगे, रिसोर्सेज को वो डायरेक्शंस में लेके जाएंगे, सो दैट वो स्ट्रेटेजी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। देन हमने देखा था एनवायरमेंटल एनालिसिस कि भाई क्या है, आपको अपनी करंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डू दी एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर क्या करोगे, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर्स द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि भाई एनवायरमेंट के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दैट यू नीड टू recognize so that you can determine the opportunities and threats। जिसके अगर एनवायरमेंटल एनालिसिस आप करोगे तो उससे आपको पता चलेगा ओटी एनालिसिस, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कि भाई वो इंडस्ट्रीज के अंदर कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज क्या है अवेलेबल होने वाली है, कौन सा नया थ्रेट्स इमर्ज होने वाला है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें क्या है आपको मालूम पड़ेगी। सो एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल एनालिसिस है, वो स्ट्रेटेजी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके वेरियस रोल्स हमने देखे थे कि भाई फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो वो क्या है हमें हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द ब्रॉडर सोशल सिस्टम, कि भाई आपका एनवायरनमेंट कंपनी अकेली नहीं होगी, बहुत पूरा एक सोशल नेटवर्क क्या है, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फैक्टर्स साइमल्टेनियसली काम करते हैं। इवन आप कंटिन्यूसली एनालिसिस करोगे तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, वार्निंग मिलेगी कि भाई ये थ्रेट्स आ रहा है। यू कैन क्या है एलिमिनेट अनसुटेबल ऑल्टरनेटिव्स, कि भाई एनवायरमेंटल एनालिसिस से आपको जो स्ट्रेटेजीज आपके लिए प्रॉपर है नहीं है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। यू कैन रिड्यूस द रिस्क इन डिसीजन मेकिंग्स, कि भाई एनवायरमेंटल एनालिसिस आपको एक सही डिसीजन, सुटेबल डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। कंटिन्यूस चेंजिंग जो है उसको एक्सेप्ट करने में, फॉलो करने में वो क्या है आपको हेल्पफुल होगा। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है वो आपको क्या है अपनी करंट पोजीशन समझने में हेल्प करेगा, सो दैट कि आगे के जो स्टेप्स है वो आप सही तरीके से ले सको। देन वी ऑल्सो सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि भाई वहाँ पे हमने वेरियस पॉइंट वाइज समझा था। देन वी जस्ट सी द वेरियस मॉडल्स, कि भाई एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स है। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था पेस्टल फ्रेमवर्क। पेस्टल का मतलब होगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, कि जिसके माध्यम से यू वांट टू डू अ मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि भाई ये सारे जो फैक्टर्स है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, वो चेंजेस की क्या इम्पैक्ट आएगी इंडस्ट्री के ऊपर, कंपनी के ऊपर, मार्केट में क्या नई अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्रिएट हो सकती है। तो पेस्टल फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, एक मॉडल है, फ्रेमवर्क है,
जिसके माध्यम से आप क्या है एनवायरमेंटल एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हो। तो वहाँ पे हमने वन बाय वन हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर देखा था कि भाई पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो उसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, तो हर एक फैक्टर्स के अंदर आप कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि यस क्या है इसकी इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर क्या हो सकती है, कंपनी के ऊपर क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें क्या है आप एनालाइज करोगे। देन वी ऑल्सो सी अबाउट द SWOT एनालिसिस कि भाई पेस्टल के बेसिस पे मार्केट में से आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मिलेगी, बट विद इन द कंपनी हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मिलेगी। तो आप अगर अपनी कंपनी का SWOT एनालिसिस करते हो, सो यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली द मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस बट ऑल्सो योर माइक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस एज आउटसाइड एज वेल एज इनर साइड, बोथ साइड हमें क्या है एनालाइज करना है, सो दैट वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमारे पास इनफ स्ट्रेंथ है या नहीं है, जो थ्रेट्स क्रिएट हो रही है उसके कंपैरिजन में हमारी वीकनेसेस कितनी है, वो थ्रेट्स हमें कितना इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो सारी चीज़ें क्या है आप SWOT एनालिसिस के माध्यम से समझ पाओगे। सो पेस्टल जो है SWOT है वो दोनों क्या है एनवायरमेंटल एनालिसिस के आपके मॉडल्स है कि जो आप क्या है यूज करोगे। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट मॉडल इज अबाउट द पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है वो इंडस्ट्रीज के अंदर और क्या चेंजेस होने वाला है, वो चीज क्या है पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल से आप समझ पाओगे। तो वहां पे 5 डिफरेंट कंपोनेंट थे वो पर्टिकुलर मॉडल के, लाइक थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस कि भाई वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है तो वो इंडस्ट्रीज के अंदर नई कंपनी नया प्लेयर आसानी से एंटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो वेरियस चीजें होगी कि जो नए प्लेयर्स को रोकेगी, तो उसके बेसिस पे आप ऑब्जर्व करोगे भाई वो इंडस्ट्रीज के अंदर बैरियर्स जो है वो ज्यादा है या कम है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई वहाँ पे थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस ज्यादा होगा या कम होगा। अगर नए प्लेयर्स ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली क्या है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होने वाली है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है, तो वो आप जान पाओगे। सेम वे थ्रेट्स फॉर द सब्स्टिट्यूट कि भाई आपकी जो करंट प्रोडक्ट है उसके कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आप ऑब्जर्व करोगे वो इंडस्ट्रीज के अंदर, एज वेल एज फ्यूचर में कौन कौन से हो सकते हैं वो आप प्रिडिक्ट करने की ट्राई करोगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमारी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूस रहने वाली है या चेंज हो सकती है, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो क्या है डेफिनेटली पीपल आर मूविंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, तो उसकी इम्पैक्ट क्या है आपकी सेल्स के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर आ सकती है, कॉम्पिटिटिवनेस क्या है आपकी इंक्रीज हो सकती है। देन वी जस्ट सी द बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है वहां पे सप्लायर्स कितने स्ट्रांग है, कितने यूनाइट है, नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने हैं, तो वो चीज क्या है डिटरमाइन करेगी कि भाई आपकी डिपेंडेबिलिटी कितनी है, तो वो क्या है उनका पावर डिटरमाइन करेगी, जितना ज्यादा आप डिपेंड होंगे वो उनकी मोनोपोली होगी, वो सप्लायर्स यूनाइट होंगे उतना ज्यादा उनका पावर होगा। सेम वे अबाउट द बायर्स, तो जो बायर्स है वो कितने स्प्रेडेड है, कितने अवेयर है, वो कौन से तरीके से पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है डिटरमाइन करने वाली है कि भाई उनका भी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा या कम होगा। एंड लास्ट अ कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमॉन्ग द इंडस्ट्रीज, तो विद इन द इंडस्ट्रीज अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो है वो कितने हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, वहां पे क्या है कितना फाइट चल रहा है, कैसा फाइट चल रहा है, और उसके अंदर कोई चेंजेस होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारे क्या है वेरियस 5 कंपोनेंट्स है कि जिसके माध्यम से we want to understand the specific industry and competitiveness in that particular industry. So once again it is a model of environmental analysis. तो environmental analysis के अंदर क्या है आप पॉटर्स 5 करते हो, पॉटर्स 5 फोर्स करते हो, SWOT एनालिसिस करते हो, पेस्टल करते हो, तो ये सारे वेरियस मॉडल्स है कि जिसके माध्यम से आप माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस करना चाहते हो, अपनी करंट सिचुएशंस पोजीशंस को समझना चाहते हो, सो दैट बेस्ड ऑन दैट आप अपनी स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस डिसाइड करो कि हम फ्यूचर में आगे क्या करेंगे। देन द लास्ट पॉइंट वी जस्ट सी अबाउट द स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज
कि भाई कंपनी की जो स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज है वो क्या है, कैसी है। तो स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज क्या रिफर करती है, इट इज रिलेटेड विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज, कि भाई कंपनी के पास कैसे रिसोर्सेज है, यूनिक है या थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज है। वो हमने इवन उसका मीनिंग देखा था कि भाई कंपनी के पास कैसा रिसोर्सेज है, कितने रिसोर्सेज है, कंपनी के पास कोर कॉम्पिटेंसी है या थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज है। तो वो चीज कंपनी की स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज डिटरमाइन करेगी कि भाई कंपनी जो है वो स्ट्रेटेजिकल स्ट्रांग है या वीक है, वो डिटरमाइन होगी। उसका परफॉर्मेंस, आप ऑब्जेक्टिव अटेन करोगे या नहीं करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, वो चीज डिटरमाइन करेगी। तो इवन स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज के अंदर क्या है, आप देखोगे कि भाई आपके जो रिसोर्सेज है वो कैसे है। तो वहां पे हमने देखा था कि भाई थ्रेशोल्ड फीचर्स के जो फीचर्स प्रोडक्ट्स के सारे कॉम्पिटिटर्स के पास है, सभी कॉम्पिटिटर्स वो प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स देते हैं, तो वहां पे यूनिकनेस नहीं होगी। बट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होगा कि ऐसे फीचर्स के जो ओनली आपकी प्रोडक्ट्स में है, आप दे रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे हैं। और वो कैसे होने चाहिए, नॉट कॉपीएबल, कि भाई कॉपी हो ऐसे नहीं होने चाहिए। सो दैट कि भाई क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स उसको बीट क्या है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फीचर्स है, तो उसको ही हम बोलेंगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। तो कंपनी के रूप में क्या है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि भाई आपके यूनिक रिसोर्सेज कौन से है और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एंड इन रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंसीज के अंदर हम डिटेल में गए थे, वहां पे हमने सबका मीनिंग देखा था कि भाई कंपनी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल। वहां पे थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज है कि जो क्या है, आपको मिनिमम इतने रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए, क्या है, सरवाइव होने के लिए। फिर क्या हो सकता है, स्लोली ग्रेजुअली चेंज होगा, चेंज के कारण क्या है, आपकी जो रिसोर्सेज है वो क्या है, थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कंपनी को कंटिन्यूअसली डिटरमाइन करना है कि भाई कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। सेम वे कंपनी के पास कोई यूनिक रिसोर्सेज हो सकता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, बट आपके पास ऐसे रिसोर्सेज है कि भाई आप क्या है, सप्लायर्स के पास हो, कोई स्पेसिफिक फैक्ट्रीज जो है, माइनिंग है, मशीनरीज है, वो आपके पास है, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपका यूनिक रिसोर्सेज है। आपके पास ऐसे इंजीनियर्स है कि जो क्या है, इफेक्टिव है इन मेकिंग द सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल, कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपके पास अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। आप आर्किटेक्चर्स हो तो आपके यहाँ पे जो आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स है वो अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वो क्या है, आपके यूनिक रिसोर्सेज है कि जो क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है, अच्छे है। तो वो रिसोर्सेज के अंदर वेरियस मीनिंग देखे थे। सेम वे हमने कोर कॉम्पिटेंसीज देखी थी, उसका भी मीनिंग देखा था कि भाई कोर कॉम्पिटेंसीज क्या दिखाएगी कि भाई आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे बेहतर हो। सो सुपीरियर परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी डिटरमाइन the way in which the resources are deployed and going to create the competencies in organizational activities, कि भाई आप अपने competitors के comparison में अपने resources को कैसे use करते हो effectively, कि जो आपको differentiate करता है, तो उसको हम बोलते हैं core competencies। कि भाई आपके भी पास resources है, आपके competitors के भी पास resources है, but वो उसको कैसे आप यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, वो चीज क्या है, आपको डिफरेंशिएट करती है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज एस्टैब्लिश करती है। तो आपका काम करने का तरीका, डिसीजन मेकिंग, आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उसका स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, वो सारी चीजें क्या है, आपको यूनिक बनाएगी, डिफरेंट बनाएगी। सो वहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसीज देखा था। एंड ओवरऑल वी जस्ट सी दैट कि भाई अगर रिसोर्सेज की बात करें तो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यूनिक रिसोर्सेज एंड थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज। तो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज ऐसे है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास भी है, आपके पास भी है। यूनिक रिसोर्सेज ऐसे है कि जो आपके पास है और आपके पास आपके कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कंडीशंस में है, अच्छे है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू कॉपी आउट। सेम वे कॉम्पिटेंसीज में भी ऐसा होता है कि भाई कोर कॉम्पिटेंसीज है आपकी कि भाई आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेहतर हो, अच्छे हो। एंड इवन थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज भी होती है कि भाई आप कंसर्न एरियाज के अंदर क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स ने वो कॉपी आउट कर दिया होगा, तो वो चीज क्या बन गई होगी, आपके लिए थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज बन गई होगी। सो इन दिस वे एट लास्ट वी जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ strategical capabilities in terms of resources and core
competencies. So this is about the unit number 1 which we just see in our subject of strategy management.